लीजिए, उसके भविष्यवाणी का एक हिस्सा हो। You are the part of his prophecy. भविष्यवाणी आपके लिए भी हुई थी, Even the prophecy was made for you. भविष्यवाणी आपके लिए भी हुई थी। Even the prophecy was made for you. मनुष्य जंगली गधा के बच्चे के समान है। Oh, man is like the wild donkey's और colt. भविष्यवाणी क्या हुई थी मालूम है? And what the prophecy कि was? मनुष्य गधा है। Man is a परमेश्वर donkey. ने निर्बलों को चुन लिया, बुद्धू लोगों को चुन लिया है। Oh, God has chosen the feeble, the foolish people of the और world. भविष्यवाणी ये हुई है The prophecy कि was, एक दिन आएगा, one day will come. यरूशलेम जय जयकार करेगा, Jerusalem will sing victories. बहुत मगन होगा, And it will be और rejoicing. राजा आएगा, यीशु आएगा। And the king will come, Jesus Christ will come. किस पर सवार होकर? Riding on what? आप वो गधे हो You are that donkey जिस पर यीशु सवार होना चाहता है। on whom Jesus wants to ride. जिस है जो कहेगा हालेलुया, Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह जय कहेगा। मसीह की. अब ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, Now I don't understand this. इसको ये पूरा इंतजाम किया है Your provision is made. और मेरी टीम की मैं तारीफ कर रहा हूँ, I'm praising my team today. लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। But I did not understand इसको this. खजूर इतवार किसने नाम दे दिया? Who gave this name Palm Sunday? किसने इसको? हम कह रहे खजूर इतवार मुबारक हो, चलिए लिखा है कैलेंडर में, मैंने बोला कि बोल दो एक दूसरे को। And we are saying to one another, Happy Palm Sunday, because in the calendar, we are greeting one another. आप देखिए थोड़ी देर बाद सबके मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। Real time, we'll start getting messages from all the people. मोबाइल पर लोगों ने डाल दिया पाम संडे, And people have put this message, Palm और Sunday. मैं उसको पाम संडे ही बोल रहा हूँ। Even I'm calling it as a Palm Sunday. पाम मतलब ये हाथ वाला पाम नहीं है, Palm is not this a hand किसी को palm. थप्पड़ मत मारिए, बोलिए पाम संडे है करके। And don't slap anyone and say, oh, it's Palm Sunday. आज पाम संडे तो आप किसके मुंह पे थप्पड़ रसीद देंगे? And it's Palm Sunday, therefore you will slap someone. Don't do like that. तो ये please. वो वाला पाम नहीं है, It is not this ये palm. खजूर वाला पाम है। It's a palm, the tree तो palm. पाम संडे नाम रख दिया इसको। And this is named as Palm Sunday. पता नहीं क्यों और किसने रख दिया है। I don't know why and who has kept it. यीशु ने कभी नहीं कहा ये पाम संडे है। Jesus never said it's a Palm Sunday. हाँ, यरूशलेम नगरी में उसने प्रवेश जरूर किया था। Yes, surely he entered the city of Jerusalem. और देखिए ये अजीब बात है, And look at this, something surprising. जो मरने वाला है उसकी एंट्री आनंद के साथ हो रही है। And the one who is going to die is entering with happiness. सोचिए आप हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहे हो And just imagine you are going to get admitted in the और आपको hospital. मालूम कि आप हॉस्पिटल में मरने वाले हो, And you know you're going to die in the hospital. आप जिंदा नहीं बचने वाले हो, You're not going to live. तो क्या आप बैंड बाजे के साथ एंट्री करोगे? Will you go with all the music and sounds? ये कौन है Who is this? जो जन्मा था मरने के लिए Who was born to die? और अब यरूशलेम नगरी में आनंद के साथ प्रवेश कर रहा है मरने के लिए? And is entering the city of Jerusalem with happiness and joy. याद रखिए वो मरा ताकि आप जीवन पाएं, Remember that he died so you could live. और यीशु मसीह का जो स्वागत हो रहा है वहां पे, And whatever they were welcoming Jesus in this place, वो देखने लायक है। it is worthy to be seen. और The things सुनिए, ready. पहले मैं बता दूं क्या होगा। And listen what I'll tell you और further. दो बार मुझे अवसर मिला And twice I got the opportunity उस जगह पर जाने के लिए to go in that place जहां से यीशु मसीह ने ये प्रवेश किया था। from where Jesus entered. और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यदि आप इजराइल नहीं जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। And I'll, for information, I'll tell you, if you don't go to Israel, you'll not be able to understand the importance. आपको जैतून की पहाड़ी माउंट ऑलिव याद होगी, You'll know the Mount Olive, जहां से यीशु का स्वर्गारोहण हुआ था। where Jesus ascended to heaven. एग्जैक्टली उस रास्ते से ये जो रैली थी यीशु मसीह, जहां से ये हम खजूर इतवार कह रहे हैं, वहां से गुजरा था। And little over the Mount of Olive, Jesus passed by that way, and he had the entry in that place. और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अंत में जाते जाते गेत्सेमने का बगीचा वहां पड़ा था। And as passing that way, that rally, it ends at the Garden of Gethsemane. हालांकि इसका उल्टा यीशु मसीह का आगमन हुआ वापस, Actually, Jesus entered in the opposite way, actually. और उसके बाद फिर यीशु मसीह
मोंदी गुरुवार, Mondi Thursday, वो स्पॉट, that spot, उसके बाद गेत्सेमनी का बगीचा उसी रात को, गुरुवार की रात, and the Garden of Gethsemane that same night. उसके बाद उसको सलीब पे चढ़ाया गया Then he was crucified. और फिर कब्र में रखा गया He was kept in the tomb. और फिर अगेन इस माउंट ऑलिव से वो ऊपर स्वर्ग में उठा लिया गया। And on the Mount of Olives, his ascension took place. तो हम लोग यहाँ से गुजरे थे We passed this और way. 2 बार गुजरे थे। मुझे देखिए, ये क्लिप को देखिए But you can see the clip. और जो लिंक शेयर कर रहे हैं आप अपना काम जारी रखिए। And those are sharing the link, keep doing और that. खजूर इतवार जहां से यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, उस जगह को हम देखेंगे। And Palm Sunday, we'll see that place with that way that Jesus passed on Palm Sunday. उम्मीद है ये क्लिप आपको पसंद आई। And I believe that you have liked this clip. 2019 जून के महीने में हम उस जगह पर थे। And 2019, we were there in that place. तकरीबन 120 लोग की योजना थी It was the plan for almost 120 people. और जितने लोग हमारे कैमरा में कवर हो सके And in a camera, whatever people we could cover, हमने कवर किए we have covered there. और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ I'm extremely happy. कि जून 2019 उस जगह से आने के बाद ये मेरा पहला पाम संडे है और ये मेरा पहला पैशन वीक है। And coming back from the June in 2019, this is my first Passion Week and first Palm Sunday. और सुबह सुबह हम इजराइल को याद कर रहे थे। Early morning we were remembering Israel. आपको मालूम, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि इजराइल कोई पराई जगह है। And I know that I never felt that Israel is some other different country. मैं जब पुणे में निकलता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, मुझे कोई एड्रेस या सड़क मालूम नहीं होती है। In Pune, when I go out, I don't know the address or the ways. कोई मुझे गाड़ी में बिठा कर लेकर जाता है और फिर लाके रख देता है मुझे पे। And someone takes me in a car and then brings me back. जगह अनजान लगती है, I feel as if I don't know the place. लेकिन जब इजराइल में पहली बार गया, मुझे कभी वो जगह अनजान नहीं लगी। ऐसा लगा वो यरूशलेम, वो गलील की झील, वो तिबिरियास, वो तबगा, 2 मछली 5 रोटी वाला वाकिया और फिर अब गेत्सेमने का बगीचा, माउंट ऑलिव, ये सारी जगह मुझे लगा कि मैं इसको पहले से जानता हूँ। And when I went to Israel, I saw that, the Sea of Galilee. When I saw the different places, Tabga, where the miracles took place of 2 fish and 5 loaves of bread, I thought this place is not new to me. It is my place, I thought. मित्रों, आपको मैं बताऊं, Friends, I will tell you this. मैं आपको बताऊं I will tell you. कि जब हम वहां पर जाते हैं When we go in that place, तो ऐसा लगता है कि बाइबल जीवित हो गई है। and then we know that Bible has become alive. ये नजारे आंखों के सामने दिखने लगते हैं And we start seeing this picture in front of और हम us. तो फुटपाथ पे चल रहे थे We're walking on the footpath. और यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है The same thing is written in the और Bible. हम उसी रास्ते पर चलकर आए हैं। And in the same way we walk. मैं खुदा को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। I want to thank the name of the Lord. मेरे वृद्ध माँ बाप ये खुद 2 बार जाकर आए हैं My old parents, themselves had gone there और twice. फिर जाने की तैयारी रखते हैं। And again they are prepared to go for the third यदि time. आप इच्छुक हो तो बिल्कुल हमें लिख भेजिए।
And if you really design, you can write to us. प्रभु ने चाहा तो अगले साल हम लोग योजना बनाएंगे। And if the Lord wills, coming year, we'll make a plan for that. वैसे हमारा फायर कैंप वहां पर हुआ था And we had organized a fire camp in that place. और उसके बाद ये टूर हमने किया था। And then we had two after that. चलिए, कोई है जो हमारी मीडिया टीम के लिए जोरदार ताली बजा दे। So glad only for our media team. और उन्होंने बेहतरीन जॉब किया, काम किया है They have done a really good job. और ये क्लिप ला के लगा दी। And they've shown us the clip. हालांकि मैंने उम्मीद और अपेक्षा दोनों नहीं रखी है, And actually, I did not expect and hope, लेकिन ये बढ़िया काम कर रहे हैं। but they're doing a great job. और कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. बीच बीच में उनके लिए प्रार्थना जरूर करते रहिएगा। And keep praying for them. चलिए, अब मैं ये सवाल फिर से उठाना चाह रहा हूँ Again, I want to keep this question in front of you. कि यीशु ने कभी नहीं कहा कि ये खजूर इतवार होगा। Jesus never said it will be a Palm Sunday. यीशु ने एंट्री की थी, Jesus had entered there. यरूशलेम में वो आए थे, He came in उन्होंने Jerusalem. प्रवेश किया था। He entered over there. लोग राजा के रूप में उसको देख रहे हैं। People saw him as a king. लोगों ने देखा कि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। People saw him doing miracles. लोगों ने सुना था कि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। People have heard about signs and किसी ने wonders. उनको बताया था, इसके लिए शायद वहां पर आए हुए हैं। Someone would have told them, therefore they came in that place. खुद यीशु को नहीं मालूम था कि इस दिन का नाम खजूर इतवार रखा जाएगा। Jesus himself never knew that this day will be named as Palm Sunday. लोगों ने अपने स्क्रीन पर पाम संडे रखा है, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। People have kept the name Palm Sunday on the screen. I have no problem with that. लोग खजूर इतवार मुबारक हो ये भी कहेंगे, फोन आएंगे अभी आपको, And people also will wish you happy Palm Sunday. You'll get a lot of calls. मैसेजेस आपको आएंगे। You'll receive messages. लेकिन आज मैं चाहूंगा ये वीडियो सुनने वाले, सैटेलाइट चर्च सर्विस को अटेंड करने वाले, And today those who are hearing the video and attending the satellite church, I want to tell them, अपनी बधाई के संदेश को थोड़ा सा बदल जरूर दें। surely change the message what they're sending. कोई है जो कहेगा हालेलुया? So say वो hallelujah. इस संदेश को सुनने के बाद After hearing this sermon, उनका ग्रीट करने का जो तरीका है अभी कोरोना की वजह से ऐसा है, and now the greeting ways changed because of Corona, they're greeting in this way. तो आपकी जो भाषा है, आपकी जो बोलचाल है वो अलग हो जानी चाहिए। Now your language should change. कभी यीशु ने नहीं कहा कि खजूर इतवार है ये। Jesus never said it is a Palm Sunday. अरे मेरे भाई मेरी बहन, चारों रेफरेंसेस मैंने निकाल रखे हैं यहाँ पर। I've taken out all the 4 references. मत्ती 21वां अध्याय, Matthew मार्क 21, 11वां अध्याय, Mark 11, लूका 19वां अध्याय, Luke 19, यूहन्ना 12वां अध्याय। John chapter 12. यीशु ने कभी नहीं कहा खजूर की डालियां लेकर आओ। Jesus never said bring palm branches. यीशु ने कभी नहीं कहा कि खजूर की डालियां लेकर आओ। Jesus never said bring palm branches. ये तो लोगों का प्यार था, This was the love of ये the तो लोगों people. की सोच थे। It was the people's वो thought. अपने राजा के लिए कुछ लाना चाहते थे, They wanted to bring something for their king. उनकी भावनाओं में कोई खोट नहीं था, There was nothing wrong in their उनको emotions. जो मिला वो लेकर आएगा। And when they got the और branches, यही मैं जिनको जो मिला वो लेकर आए। whatever they got, they और brought मैं there. आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ, And I want to tell you जब this. भी आप अपने खुदा से मिलने के लिए आ रहे हो, When are you coming to meet your जब भी God? अपने प्रभु को मिलने के लिए आ रहे हो, When are you coming to greet your आपके Lord? पास जो है, जो सबसे उत्तम है, उसको लेकर आइए। What do you have the best? Bring him to him. उसकी वर्शिप में, उसकी इबादत में, उसकी आराधना में कुछ लेकर आइए। In his worship, bring something to him. और देखिए, हाबिल उत्तम लेकर आया। Abel got the best for God. हाबिल वो लेकर आया जो प्रभु को पसंद आएगा। Abel got that what God was pleased क्या with. प्रभु को पसंद आने वाली भेंट दे रहे हो? Are you giving the offering which pleases the Lord? आप जो कुछ लेकर आ रहे हैं, क्या प्रभु को पसंद आएगा? Whatever you are bringing, does God like that? कैन कुछ लेकर आया है क्या? Then God उसकी something. मनोवृत्ति की एक अलग प्रॉब्लम थी क्या? There was a problem in his attitude. तो प्रभु के लिए आप कुछ लेकर आइएगा। Bring something for the Lord. याकूब ने बेतेल में कहा And Jacob said in कि प्रभु Bethel, यदि मैं सेटल हो गया, what if I settle सब down? कुछ अच्छा हो गया, Everything goes good with उसने me. दशमांश का ऐलान वहां पे कर दिया। And he declared that he'll give tithe to the मेरे Lord. भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters, कुछ लेकर आइएगा। bring something to the Lord. पाम संडे लोगों ने खजूर इतवार के वक्त अपना उत्तम लाया, अपना बेस्ट लाया। During Palm Sunday, people got the best they what they could. उनको खजूर की डालियां मिली, पाम मिले, वो उसको लेकर आए Whatever palm branches they got, they brought that. और इसलिए इसका नाम खजूर इतवार रख दिया गया And है। therefore we kept the name Palm Sunday. लेकिन बिब्लिकली मैं बात कर रहा हूँ, But I'm speaking biblically. वचन के आधार पर बात कर रहा I'm हूँ। speaking on the base of the word. खुद यीशु ने कभी नहीं कहा Jesus never said himself खजूर की डालियां लेकर आ जाना, that come with the palm ये branches, कपड़े तुम बिछाना, that you lay down your वो इन clothes. चीजों के लिए नहीं आया था। He never came for all these things.
salvation. वो आया था उद्धार के लिए, He came for salvation. अनंत काल का जीवन देने के लिए। He came to give you eternal उसने life. कभी नहीं कहा है, He never said. तो उसने जो कहा है, What he said, आइए हम उसको देखने की कोशिश करते we'll हैं। try to see that. हम उन चीजों पर ध्यान, कपड़े पर मैं प्रचार नहीं करना चाहता, बहुत किए मैंने प्रचार। I don't want to preach at the clothes. A lot of time I've given जो sermon. रास्ते पर कपड़े डाले उस पर मैं प्रचार नहीं करना चाह रहा I हूँ। don't want to preach upon the clothes what they laid on the road. खजूर पर मैं बोलना नहीं चाह रहा। I don't want to speak on palm. मैंने उस पर बहुत सारी बातचीत की है। A lot of things are spoken on वैसे that. प्रभु ने कल खजूर पर भी मेरे साथ बातचीत की, And on palm also God spoke to me. लेकिन मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ। But I don't want to speak upon that now. जो प्रभु ने कहा था What God said, उस पर हम बात करेंगे, speak upon जिसके that. बारे में बाइबल बताती है, And the Bible tells us हम about उसके it. बारे में बातचीत करने वाले हैं। I'm going to speak upon कोई है that. जो कहेगा हालेलुया, So say hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह के। So जय अब मसीह देखिए की। प्रभु ने क्या कहा था। I see what God पहला said. मैं चारों, देखिए चारों सुसमाचार में ये उल्लेख पैशन वीक का आपको मिलेगा। In all the four gospel books, you'll see that Passion Week is mentioned. आपको मालूम नहीं, गैर मसीह सोच रहे कि आपका सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस है, Even the non-believers might be thinking that your greatest festival is Christmas. लेकिन मैं आपको बताऊं, But I will tell you this. ये मॉल सब डेकोरेशन यदि होना चाहिए तो वो पैशन वीक के दरमियान होने चाहिए। If the mosque should be decorated, it should be happening during the Passion Week. क्रिसमस सबसे बड़ा त्योहार नहीं है। Christmas is not the biggest यीशु के festival. जन्म से उद्धार नहीं मिलता है, By the birth of Jesus Christ, we don't get लेकिन salvation. उद्धार मिलता है यीशु मसीह की मृत्यु से, गुड फ्राइडे से। But we get salvation to the death of Jesus ये Christ. आजादी है, It is the ये independence. पाप से आजादी है, It is the independence from ये sin. शैतान की गुलामी से आजादी It is the है, independence from slavery of एक नए Satan. जीवन की शुरुआत है। It's the beginning of new कोई life. है जो अपने हाथों को उठाएगा, कहेगा आमीन। Everybody has amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. और देखिए जन्म महत्वपूर्ण नहीं था, The birth was not important. केवल मत्ती और लूका के सुसमाचार में आप क्रिसमस पाओगे। Only in Matthew and Luke you'll be seeing that Jesus' birth is mentioned. मरकुस और यूहन्ना ने उसका कोई जिक्र नहीं किया है, Mark and John has not mentioned it. लेकिन पैशन वीक, But Passion Week, दुख भोग सप्ताह, the Compassion Week, मैं उसको जुनून का सप्ताह कहूंगा। I'll call it as a Passion यीशु Week. जुनून लेकर आया था, Jesus came with a passion. ऐसा जुनून की सलीब पर कीले ठुक गई है, सिर पर कांटों का मुकुट उसने लग गया है, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। आपके लिए वो मारा गया ताकि आप एक नया जीवन पाओ, एक नई शुरुआत कर सको और अनंत काल का जीवन पाओ। कोई है जो अपने प्रभु के लिए अपने हाथों को उठाएगा, मुट्ठी को पकड़ेगा और कहेगा यस, ये जुनून का सप्ताह है। It is a Passion Week. हम सेवकों में और मेरे से सेविकाई करने वालों को मैं उत्तेजन देना चाहता हूँ। I want to encourage the servants of God and the servants like me. यहाँ से आपकी मिनिस्ट्री की नई शुरुआत होनी चाहिए। From here should have new beginning to your ministry. जब भी पैशन वीक आता है, ये सेवकों के लिए न्यू ईयर होना चाहिए। Whenever Passion Week comes, it should be a new way for the servants of God. एक तारीख न्यू ईयर की नहीं होनी चाहिए। One January should not be a new ये year. कलीसिया के लिए कैलेंडर में ये एक तारीख न्यू ईयर होगी, नया साल होगा। For the church, for the candidate, it might be a new year. लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, But I want to tell you this. जो सेविकाई करते हैं, Those who do the हमें ministry, खुदा के जुनून से अपने आप को प्रोत्साहित करना है। encourage yourself with a Passion Week. ये वो आगे आगे चला था He went ahead of और मुझे them. खुशी है जो मेरे आगे आगे चला था उसके पास ये जुनून था। And the one who went ahead of them, he had this passion. और आज जब मैं सेविकाई कर रहा हूँ, मुझ में भी यही जुनून होना Today, चाहिए। and when I'm serving God, even I should have the same मैं passion. खुश हूँ, 3 तारीख को मैं जुनून के साथ मैंने नौकरी छोड़ दी और फिर प्रभु की सेविकाई करते करते फुल टाइम, नो पगार, कोई तनख्वाह नहीं, 14 साल हो गए हैं। And on the 3rd of April, I will serve you. I left my job and did the full-time ministry, and 14 years have passed, and really God has taken care of और me. ये 2 ही दिन हो गए हैं अभी करके, And just 2 days have 3 passed. तारीख को हुआ On 3rd we और आज celebrated. मैं ये प्रचार कर रहा And हूँ today I'm preaching this. और मेरे लिए ये न्यू ईयर है। It's a new year for me. हर सेवकों के लिए नया साल होना चाहिए। It should be a new year for every servant तो of God. देखिए यीशु ने क्या कहा था, See what Jesus ये had said. खजूर नहीं कहा था, He never said ये तो palm. लोगों की भावना थी, This was the emotions of जिसमें people. कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, I have no problem with लेकिन that. जो कहा उसको सुनना जरूरी है। And what is said, you have to be तो careful with चारों that. सुसमाचार में दुख भोग सप्ताह, जुनून सप्ताह आपको मिलेगा। In all the 4 Gospels, you'll find the Passion Week. मत्ती से शुरुआत करते हैं We'll start with और Matthew. 21वां अध्याय में ये उल्लेख है, देखते हैं क्या लिखा है। 21st chapter is mentioned, and we'll see what is written down there. जब वे यरूशलेम नगर के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे गांव के पास आए, तब यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही बंधी हुई मिलेगी,
उनके साथ उनका बच्चा भी तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। मरकुस 11 अध्याय उसकी पहली आयत देखिए, अगला संदर्भ देख रहे हैं हम लोग। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया गांव के पास आए, तब यीशु ने अपने चेलों में से 2 को भेजा और उनसे यह कहा, अपने सामने के गांव में जाओ। उस गांव में पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कोई भी नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे। लूका उसका 19वां अध्याय Luke 19 और उसके 28वें आयत। and 28 verse. ये बातें कहकर यीशु यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चले। जैसे मैंने बताया आपको, सुनिए, As I told you, listen. ये बातें कहकर यीशु यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चले। तब यीशु जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया गांव के पास पहुंचे। तब यीशु ने अपने 2 चेलों को भेजा और उनसे यह कहा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कोई भी सवार नहीं हुआ। उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। बस, थैंक यू। प्रभु आपको आशीषित करे। बस। God bless you. सुनिए, Listen. बाइबल क्या बताती है। What the Bible tells us. यूहन्ना में नहीं पढ़ रहा हूँ, I'm reading in क्योंकि John. डायरेक्ट वहां गधी का बच्चा मिला, ये उल्लेख किया गया है। And that is mentioned that they got the colt and the donkey. अब कहीं पर भी खजूर की डालियां का उल्लेख नहीं हुआ है, Nowhere they mention the palm और जहां branches. उल्लेख हुआ तीनों जगह पे, चारों जगह पर, And all the 4 places where it is mentioned, वो लोगों ने किया है, people have done that. उसको नोट किया गया है This is noted. कि लोगों ने ये किया है। The people did that. उस औरत ने, विधवा ने, गरीब औरत ने 2 दमड़ी दी, उसको नोट किया गया है। That poor widow had given 2 corn. That was noted. जक्कई ने जो लिया था उसको दे दिया, अपनी संपत्ति बांट दी, ये नोट किया गया है। What Zacchaeus had taken from the people, he returned them double of that. अब्राहम ने मलकीसेदेक को जो दिया वो नोट किया गया है। What Abraham gave to Melchizedek was mentioned, noted. तो मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, I don't refuse that. लेकिन ये प्रभु का दर्शन नहीं है। But that was not the vision of ये God. खजूर की डालियां प्रभु का दर्शन नहीं है। The palm branches are not the vision of God. लोग खजूर के क्रॉस बना रहे हैं, ये दर्शन नहीं है। People are making cross of palm. That is not the vision. खजूर की डालियां दर्शन नहीं है। The branches of palm are not the vision. ये तो स्वागत करने का एक जरिया था, That is the way of और ये welcoming. डेकोरेशन मैंने करवाया है क्या, And I've made this क्योंकि decoration to be दुनिया done. को जो भाषा समझ में आ रही है उसी में मैं बात कर रहा Because हूँ। I'm telling you and speaking the language of people understand. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my लेकिन sisters. विश्वासियों को समझना पड़ेगा, But believers need to understand ये this. दर्शन नहीं था, This was not the ये vision. भविष्यवाणी नहीं थी। This was not the prophecy. कुछ लोग भविष्यवाणी वाले मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं Some people are forwarding the prophecies. कि फलाना जगह पर कोरोना वायरस की भविष्यवाणी हुई थी, There was a prophecy in certain place the coronavirus will come. और ये इस भविष्यवाणी के मुताबिक हुआ है। And it happened according to this prophecy. कभी मौका मिले तो बताऊं कि बाइबल की भविष्यवाणी कौन से काम के लिए हुई थी। And sometime if I get a chance, I will tell you when the prophecy was made and what purpose. जो भविष्यवाणी हुई थी वो फुलफिल कब हुई, And whatever prophecy was made, when they were वो fulfilled. पूरी कब हुई। When they were तो fulfilled. कोरोना आ गया, ये भविष्यवाणी फुलफिल हो गई, इसके लिए था ये बाइबल। And because coronavirus came and therefore the prophecy was there, was that like that? सत्य से बहुत दूर हो, सत्य तुम्हें समझेगा और सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा। You're far away from the truth. When you know the truth, and truth will set you तो किसी free. और दिन इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। Some other day I'll speak upon this. मेरी बात आपको पसंद आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, Whether you like what I speak, I don't like it, that doesn't make any difference to me. मैं सत्य बताना चाह रहा हूँ। I'm going to tell you the तो truth. खजूर की डालियां, ये प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा, What palm branches and palm, this Jesus never mentioned. इसके बारे में जिक्र नहीं किया बाइबल में। Bible, these things are not ये तो mentioned. लोगों की भावना थी, This was the emotions of the ये तो people. लोगों का प्रेम था, This was the love of the लेकिन people. जो प्रभु ने कहा उसको देखने की जरूरत है। But what Lord said, let's see those things. प्रभु ने जो कहा उसको देखने की जरूरत है। But we need to see those things what God और said. जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं As we're reading the तो Bible, हमको केवल एक ही चीज मुझे बार बार नजर आ रही only है, one thing I see again and मैं again. बार बार उसी को देख रहा हूँ, And in that same thing और I'm बार बार seeing. प्रचार वहीं पर आकर रुक जाता है And पैशन when preaching comes and वीक stops in में, that और place. मैं उसी पर बातचीत करना And चाहता I want to हूँ, speak upon पाम that. संडे पर बातचीत करना चाहता I want to speak on हूँ। Palm और मैंने Sunday. बताया ये शुरुआत होनी चाहिए हर सेवकों के जीवन के लिए,
चाहिए। And I told there should be beauty for every servant of हर God. कोई जो प्रभु की सेविकाई में जुड़ा हुआ है, Everyone who's joining the ministry. छोटा या बड़ा काम, जो भी काम वो कर रहा है, Doing the small work or big work in the ministry. प्रभु के नजर में सारे लोग समान है। All are at the same level in the sight of the कई Lord. बार मेरे कर्मचारी, मेरे सेवक, मेरे पास्टर मुझसे कहते हैं, फाउंडर हो, इसके लिए आप ऐसा कर रहे हो। My pastors, my people who co-workers, they say, Lord, you're because you're founder, you're doing this work. मेरे भाई, मेरी बहन, My brothers, my दर्शन sisters. सबके लिए एक समान है। The vision is same for all. बुलाहट सबके लिए एक समान है। The calling is same for all. बड़ी बुलाहट, छोटी बुलाहट, बड़ा काम, छोटा काम, महान सेवक और छोटा सेवक नहीं। इस दुनिया में कोई महान नहीं, ना मैं महान, ना कोई भी सेवक महान है। इस दुनिया में कोई महान है तो उसका नाम यीशु मसीह है। And if anyone is going to Jesus. this world, his name is Jesus Christ. महान बनने के लिए किसी को शौक नहीं आया है। No one has we have to have a big name. यदि मुझे महान बनना होता तो मैं नौकरी ही करता, If I wanted to become something great, I would have just kept my job. वहीं पर मैं काम करता, I would have वहीं पर worked मैं for पैसा that. कमाता। I would have owned that. महान बनने के लिए सेविकाई में नहीं आए हैं। I didn't come to the ministry to make my जब name. किसी पैम्पलेट और पोस्टर में कहा जाता कि प्रभु के महान सेवक रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे आ रहे, तो मैं कहता कि महान कोई नहीं, महान केवल यीशु मसीह है। पैम्पलेट में यह होना चाहिए, महान प्रभु के सेवक आ रहे हैं। It should be mentioned in the pamphlet in Latin this way: the mighty servant of God, servant is coming. कोई है जो कहेगा हालेलुया, महान केवल यीशु है। Only Jesus is mighty. उसकी महिमा आप और मैं नहीं ले सकते। We cannot steal his greatness. कोई है जो कहेगा हालेलुया, Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह जय कहेगा। मसीह ये शुरुआत का सप्ताह होना चाहिए, It should be the beginning ये week. शुरुआत का साल होना चाहिए। It should be the beginning आपकी year. बुलाहट की शुरुआत होनी It should be चाहिए। the beginning of your calling. मेरे भाई, मेरी बहन, ध्यान से सुनिएगा। My brother, my sister, listen यीशु ने carefully. जो कहा उसको हम देखेंगे। What Jesus said, we are going to see ये हैप्पी that. पाम संडे वगैरह मत बोलिएगा आज। Don't say Happy Palm Sunday. मेरा वचन सुनने के बाद After hearing my word, आप जो सुन रहे हैं वो बोलिएगा लोगों को। now what are you hearing? Speak that to the people. और बाइबल जो कहती है क्या, The Bible tells जब us यीशु आए, that Jesus उन्होंने came. 2 चेलों को भेजा है। He sent his 2 सामने disciples के गांव में जाओ, in the nearby उसने village. जो बताया उसको ध्यान से सुनिए। And what he said, listen carefully. वहां पहुंचते तुम्हें एक गधी नहीं, गधी का बच्चा मिलेगा। And when you reach in that place, you'll find a colt tied in that place. गधी तो है वहां पे, The donkey is there. गधी बंधी हुई मिलेगी, The donkey is tied लेकिन there. प्रभु उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। God is interested in और that. कहा गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, And you'll find a colt tied in that उसको place. खोल कर लेकर आओ। Open and loose and bring it. गधी के बच्चे को खोल कर लेकर आओ। Loose the colt and bring it. इसको तो गधे का संडे मुबारक हो ऐसा कहना चाहिए। We should always say this, oh happy donkey Sunday. कोई है जो कहेगा हालेलुया, Hallelujah. ये पाम वाला संडे, खजूर वाला संडे नहीं है, This is not a Palm Sunday. क्योंकि भैया खजूर तो लोग लाए थे यहाँ, People got the palm branches. लेकिन ये संडे कौन सा है यहाँ? Now what Sunday it is? ये गधों वाला संडे है। It is the Sunday of the donkeys. कोई है जो कहेगा हालेलुया, Say hallelujah. क्योंकि गधा आया था इस दिन, Donkey had come. गधे को लाने का दर्शन दिया था। The vision of bringing donkey was there. खुद यीशु ने दर्शन दिया है। Jesus himself gave the vision. सेवकों को 2 को भेजा है He sent his 2 और disciples. कहा गधे का बच्चा बंधा हो मिलेगा, And you find a colt tied उसको there. खोल कर मेरे पास लेकर आओ। Lose it and bring it to me. गधी का बच्चा मिलेगा, You'll find a colt. खजूर मिलेगा नहीं कहा। It didn't say you'll find palm खजूर के branches. क्रॉस बनाओ और फिर चुपचाप बैठो और अगला पाम संडे, And make the process of palm branches and then you'll celebrate. बाद में क्रिसमस, Then फिर Christmas, अगला पाम संडे। the next Palm Sunday. नहीं मेरे भाई मेरी बहन, No, my brothers, my sisters. जिसको पाम संडे समझ में आ गया है, Who has understood the Palm वचन Sunday? का शीर्षक में एंड में बोलने वाला हूँ। Title of the sermon I'm going to mention in the जिसको end. पाम संडे समझ में आ गया है, Who understood the Palm Sunday? उसका सोच और उसकी बुलाहट ही अलग हो जाती है। His thinking, it becomes कोई है मेरे different. साथ जो कहेगा हालेलुया, Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह कहेगा। Jai Masih ki. सुनिए क्या चल रहा है यहाँ पर, Listen what's happening in this सुनिए place. क्या चल रहा है। Listen what's happening. विजन दर्शन जो दिया था The vision which was वो given, खजूर का नहीं था, it was not palm. वो गधे का था। It was about the गधे donkey. के बच्चे को खोल कर लेकर It was about the colt which was tied to आओ, गधे lose के it. बच्चे को खोल कर लाओ। Lose the colt and bring it. और मेरे हिसाब से भी ये गधी के बच्चे का संडे होना चाहिए।
It should be the Sunday of the cold. अटपटा लग रहा है ना आपके कानों में? You feel something different to your ears. पता नहीं कान की खुजली वाली बातें लोगों को पसंद क्यों आती है, I don't know why people like the sermons which should each their ears. लेकिन ने संदेश नहीं बोला खुजली वाली बातें क्यों पसंद आती है लोगों को. Why people love the things which eaches their ears. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my जो sisters. प्रसन्न करती है वो बातें अच्छी लगती है क्या? What things you are happy, you like those things. जो हजम नहीं हो रहा वो पसंद नहीं आती है क्या? And what you cannot digest, you don't like those things. लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. But that doesn't make any difference to मैं me. यहाँ पर हकीकत और सत्य बोलने के लिए यहाँ पर हूँ. I'm in this place to tell you the truth. गधी का बच्चा बंदा वो मिलेगा, खोल कर लेकर आओ. You'll find a cold tart in that place, bring it, or lose and bring it. कोई है जो कहेगा हालेलुया, Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह की. Jai Masihi. मैं चाह रहा कि आज शुरुआत में जिस बार अगली बार पिछले बार मैंने जहाँ पर एंड किया था पाम पैशन वीक, And last time when I had ended Passion Week, वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ. I'm starting from there और again. ये संदेश पिछले बार का मेरे ख्याल से यूट्यूब पे नहीं है And last time sermon is not available on the और YouTube. होने भी नहीं चाहिए ऐसे रहस्य वाले संदेश जो मैंने बोले थे. And like that, Mr. Sermon should not be there on the कुछ YouTube. को मैं कॉपीराइट रखना चाहता हूँ, Because few I want to keep as a copyright. तो मैं जहाँ खत्म किया वहां से शुरू करना चाह रहा And when हूँ. I finish, I will start from there again. अय्यूब उसका 11वां अध्याय, Job 11. अय्यूब उसका 11वां अध्याय Job 11 और उसकी 12वीं आयत ध्यान से सुनिए. and the 12th verse. अय्यूब उसका 11वां अध्याय Job 11 और उसकी 12वीं आयत. and 12th verse. आप सोचो कि पाम संडे है, ये अय्यूब क्यों निकाला? I said, it's Palm Sunday, why you taken the book of Job? क्योंकि पिछले बार जो मेरे चर्च के लोग हैं उनको याद होगा, Because my church people will remember this well. अब जो नए परिवार है उनको शायद मालूम नहीं होगा. New family members not knowing that. यहीं पर मैंने एंड किया था. Had ended in this place. अय्यूब उसका 11वां अध्याय Job chapter और 11 उसकी 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे. and the 12th और verse. सुनिए, And listen. परंतु मनुष्य मनुष्य छूछा छूछा और निर्बुद्धि होता है। मनुष्य, सुनिए सुनिए, मनुष्य क्या होता है? परंतु मनुष्य छूछा छूछा और निर्बुद्धि होता और है, निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही अरे से बाप रे, सुनिए, मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के क्या समान, मैंने सुना? जंगली गधे के जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। जंगली गधे के बच्चे के समान होता है. And a man is like the wild colt of यदि a मुस्कान donkey. आ रही है प्यार भरी, खुदा को महिमा देने वाली, तो मुस्कुरा दीजिए, हाथों को उठाइए और कहिए हालेलुया. Hallelujah. पिछली बार मैंने यहाँ छोड़ा था, Last time I had left in this place. यहाँ पर मैंने समाप्त किया I था. had ended the sermon in over here. मैं सुबह 9 बजे सोया हूँ. Morning 9 o'clock I slept. मेरी आंखें थोड़ी सी सूजी हुई है, My सूजी eyes नहीं कहूंगा, थकी हुई है, are a little tired, लेकिन मैं उत्साह में हूँ. but I am full of excitement. मैं यकीन मानिए 2:30 बजे के बाद मैं बैठा हूँ After 2:30 I slept. I sat for studies. और नॉट स्टडीज, मैं प्रभु के मौजूदगी में बैठा हूँ. स्टडी नहीं की मैंने पास्टर, ये 3 दिन स्टडी नहीं करता मैं. और मैं प्रभु के साथ बैठा हूँ. After 2:30 I sat in the presence of the Lord. बहुत बार मैं रोया 9 बजे तक. A lot of time I cried till 9 अलग अलग o'clock. टाइम पर अलग अलग बार मैं रोया. Different time and different ways I cried. मैंने कुछ नहीं किया कल, I did not do anything खाली yesterday. प्रभु के साथ वक्त बिताया But I was spending time with my God. और प्रभु से बात कर रहा था. And I was speaking with कोई him. मैसेज प्रिपेयर नहीं किया I was मैंने, not preparing any message. संदेश प्रिपेयर नहीं किया I है. was not preparing this पिछली बार sermon. जहाँ छोड़ा है And last time when I left over here, वहीं से मैं बोल रहा हूँ. I was speaking from the same place. ओ मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. 9 बजे मैं सोया थोड़ी देर के लिए 9 o'clock I slept for some और time. फिर सर्विस के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे. I was preparing for the service मैं there. कुछ ही घंटे, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा सो पाया हूँ ठीक से. I only could sleep for 1.5 hours. और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, And I want to tell you this. लिखा है, It's written. अय्यूब कहता है, Job says. परंतु मनुष्य छूछा मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता और है, निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से क्योंकि मनुष्य जन्म ही से कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा और कहेगा मनुष्य Manusha. मनुष्य. Manusha. ये आपकी बात चल रही है. Speaking about you. प्रभु ने मनुष्य को बनाया. God made man. ये आदम हवा का जिक्र उत्पत्ति 2 अध्याय में आता है, Adam and Eve are mentioned in Genesis chapter 2. लेकिन उत्पत्ति पहले अध्याय 26, 27, 28 में मनुष्यों को प्लूरल बनाया है आया. But Genesis chapter 1, 26, 27, it says that God created male and female. अब इन दोनों का क्या चक्कर है, कभी और बात करेंगे हम लोग. And what this means exactly, I'll tell you some other time. एक्ट्स
बाइबल ई लर्निंग को आप सब्सक्राइब करिए और सुनिएगा। And surely subscribe Acts e-learning. मित्रों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, Friends, I want to tell you this. उत्पत्ति पहला अध्याय 26, 27, 28 परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। Genesis chapter 1, 26, 27, 28 was God created अब man. आपकी बात चल रही है खजूरत्वर, कहाँ लेकर बैठे आप? Speaking about you, we are speaking about the palms. एक क्रॉस बनाकर खुश हो गए, You're making the cross and you have become happy. घर में लगा के खुश हो गए, You'll be happy with all these things. यहाँ लगा के खुश हो गए। You'll put the cross and you'll be happy. आपको पाम संडे समझ में नहीं आया है। You didn't understand the Palm मैं Sunday. आपको समझाना चाहता हूँ, I want to explain. मैं आपको बताना चाह रहा I हूँ। want to tell you this. अय्यूब कहता है, Job says, मनुष्य छूछा है, man is वो empty-headed. निर्बुद्धि है, He's not wise. वरन वो जंगली गधे के बच्चे के समान है। And he is like the wild colt of a donkey. गधा नहीं, गधा के बच्चे के समान है। He said man is like the wild colt of wild donkey. गॉड इज वेरी क्लियर, प्रभु बड़ा स्पष्ट है। God is very clear in this place. गधा नहीं, गधे के बच्चे के समान है। He did not say donkey, but the wild colt. मैं आऊंगा उस विषय पर थोड़ा सा। I'll come to that later. गधे के बच्चे के समान है। It's like the colt of a donkey. और देखिए, गधे का बच्चा आप हो। You are the colt of donkey. बगल वाले को बोलिए और बोलिए कि आप गधे हो। And tell your neighbors you are a donkey. आज जो लाइव स्ट्रीम पे मुझे सुन रहा है, And those hearing me on live वो streaming, चौंक गए, ये कौन सी बात है? they are shocked. What is this? अरे भाई, ये मेरी बात नहीं है, It's not my thing. ये प्रभु आपको गधा कह रहा है। Your God is saying to you, donkey. ये वचन बता रहा है कि मनुष्य गधे के बच्चे के समान है। And here the word of God is telling you that man is like the colt of a कोई donkey. है जो कहेगा हालेलुया, Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह की। जय मसीह। मनुष्य जंगली गधे के, अब ऐसा वैसा गधा भी नहीं, जंगली गधा। And not like that any donkey, but wild donkey. बहुत सारे क्रिश्चियन जंगली लोग हैं। Many Christians are wild. हाँ, बहुत ही जंगली है। They're wild. टाइम पे चर्च में नहीं आएंगे, On time they'll not be to church. ढंग से कपड़े नहीं पहनेंगे, They'll not wear the clothes properly. ढंग से खाना नहीं खाएंगे, They'll not eat properly. बाइबल नहीं पढ़ेंगे, They'll not read the Bible. जंगली हो आप। They're wild. प्रभु ने ऐसा विश्वासी की उपमा या ऐसा विश्वासी की कल्पना नहीं की थी। Jesus never imagined about this kind of believers. तो खैर, मनुष्य जंगली है, क्रिश्चियन जंगली है। Man is wild and Christians are wild. और आप कह रहे कि जंगली बाबा मतलब हमको, मतलब गधा बोल रहे हैं आप यार, सीधे सीधे कैमरा पे। And on cameras they're telling us we are donkeys. हाँ, मेरे भाई मेरी बहन, और सबसे बड़ा गधा तो मैं हूँ जो आपके साथ बात कर रहा हूँ। And yes, my brother and sister, surely, and I am the greatest donkey speaking to you. और ये मीडिया ने जो इंतजाम किया वो दूसरे गधे हैं, And media has made the provision. They are the another donkeys. जिन्होंने ये सब इंतजाम करके रखा है। They made all the provision over हमारी here. टेक्निकल टीम, प्रोडक्शन टीम रात को जाग के कहा, गधे हैं वो लोग सब। Technical team, production team have the way stood awake at night and done all this decoration. गधों के लिए काम कर रहे हैं, They're working for donkeys. आप जैसे गधों के लिए। Donkeys like you. लेकिन यही हकीकत है। But this is the truth. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. देखिए, जो प्रभु ने कहा वही बोलना पड़ेगा मेरे को। And what God said, I have to speak the same thing. खजूर नहीं कहा कहीं पर भी। Nowhere palm is mentioned. सुनिए, कोई है जो कहेगा हालेलुया। I'll say hallelujah. पहला करंथियों 1 Corinthians, पहला अध्याय 4th chapter, और उसकी 26वीं आयत पढ़ेंगे। 26 verse onwards. पहला करंथियों 1 Corinthians, उसका पहला अध्याय 4th chapter, और उसकी 26वीं आयत हम पढ़ेंगे। 26 verse we'll read. और लिखा है, And it's written. वल्हा सिंदला हे पहला भाइयों। करंथियों। देखिए, ये सब ये मेरा मैं लिख कर नहीं आया हूँ। I've not come writing this all पवित्र things. आत्मा जो रेफरेंस मेरे मुंह में डाल रहा है वही बोल रहा हूँ मैं। Whatever scriptures the Holy Spirit is giving me, I'm speaking on अब मैं that. आपको देख रहा हूँ। And I'm seeing that now. अब सुनिएगा। Now listen. हे भाइयों, हे भाइयों, कुछ सोचो। अरे बाबा तुम जरा सोचो, जब तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया, जब तुम्हें बुलाया जंगली गधे थे तुम लोग। हाँ, तब तुम क्या थे? कि जंगली गधे थे, बता रहा हूँ मैं। मनुष्य की दृष्टि में मनुष्य की दृष्टि में तुम में से बहुत लोग न ज्ञानवंत थे न ज्ञानवंत थे, और न सामर्थ्य थे। न सामर्थ्य थे। देखिए, जब दाऊद आया तो गोलियत के सामने एकदम मतलब छोटा लग रहा है। And when David came in front of Goliath, he was looking very small. 9-10 फुट का गोलियत डरा रहा है उसको। Oh, the 9.75 feet Goliath was frightening David. शैतान करुणा लेकर आया और आपको डरा रहा है। Satan has come with corona and he's frightening आप you. उसके सामने छोटे लग रहे हो, निर्बल लग रहे हो। In front of him, you are looking feeble, helpless. बहुत सारा ज्ञान। पतरस ये लोग मछली पकड़ रहे थे। Oh, Peter, all they were fishers. अंद्रियास आधा डजन जो चेले थे वो तो बिल्कुल निर्बुद्धि थे। Half dozen the disciples
were uneducated. नंगा कूदा है वो यूहन्ना बाद में, And you can see John, he jumped in the sea naked. मतलब कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी। They were not disciplined to wear the clothes. जब बुलाया गया तो तुम क्या थे? When you were called, what were you? कुछ नहीं थे, जंगली गधे थे। You were nothing, you were a wild donkey. कुछ नहीं, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। No wisdom, no knowledge. और हमको जिंदगी भर कुछ लोगों ने इसको पकड़ के रखा, मेरे चर्च के मिनिस्ट्री के लोगों ने भी। And my ministry people has also taken this seriously. 20 सालों का यही बोल रहे कि अरे प्रभु जो मूर्खों को बुलाया। अरे लेकिन आपको मैसेज लास्ट तक सुनिएगा आप मेरा। And you know, some people say that if God has chosen the unwise, and yes, till the last can hear my जब sermon. बुलाया गया तब ये हालत है, बात की हालत अलग है। And when you were called, you were unwise, but the things later on changes. सुनिए, Listen. तुम निर्बुद्धि थे, तुम ज्ञानवान नहीं थे, और न सामर्थ्य थे, ना सामर्थ्य थे, तुम न बहुत कुलीन व्यक्ति थे, हाँ, परंतु परमेश्वर ने जगत के हाँ, मूर्खों को चुन लिया अरे है। बाप रे, किसको चुना है? मूर्खों को। किसको? मूर्खों को। मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। I am the fool of all. कौन नौकरी छोड़कर खुदा के पीछे चलेगा? Who will quit the job and follow Jesus Christ? मुझे खुशी है, I am happy. मुझे खुशी है I am happy. कि मैं मूर्खों का पास्टर हूँ। I am the head of the fools. और आप मूर्ख हो तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, क्योंकि फाउंडर तो मैं ही हूँ। And if you are fool, then I am the founder, so I am the greatest fool. और हमारे पुणे में एक पागल खाना भी है इधर, And in a Pune, there is even a mental hospital. हाँ, और 126 नंबर की बस जाती है वहाँ पे, जाके आइए कभी। 126 number bus goes in that place. लेकिन अब तो जाने की भी जरूरत नहीं है। Now we don't have to even go there. ये सेनापति बापट रोड में ऑडिटोरियम में आ जाइए और वहाँ पे मूर्ख लोग आपको नजर आएंगे। Senapati Bapat Road, you come in the auditorium in that place, you'll find fools in that और place. बहुत मूर्ख लोग आते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। And a lot of fools come in और that सबसे बड़ा place. मूर्ख तो मैं होता हूँ, तैयार I am होकर। the greatest fools who got prepared and came. जब तुम्हें बुलाया गया तो तुम क्या थे? Here you are calling, look at your calling, brother. लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञानवानों को हाँ। लज्जित करे। हाँ। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है हाँ। कि वो बलवानों को लज्जित करे। हाँ। परमेश्वर ने जगत के नीचों हाँ। और तुच्छों को हाँ। वरन जो है भी नहीं जंगली है उनको भी चुन लिया उनको है भी चुन लिया है कि उन्हें जो है हाँ। व्यर्थ ठहराए। जो है उनको व्यर्थ ठहराए। सुनिए, Listen. परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। God chosen the foolish people of the world. दाऊद किसी भी एंगल से ये बलवान नहीं था, David from no angle, he was a mighty man. गोलियत बलवान था, Goliath was लेकिन mighty. प्रभु ने जगत के ऐसे को चुन लिया है But God chosen those people जो of the है भी world नहीं, who are जो nothing, निर्बल है, who are feeble, जो मूर्ख है। who are fools. कई बार हम एकदम शाणे बनकर प्रभु के पास आ रहे हैं, By the time we become wise and we come in front of the Lord. एकदम बुद्धिमान बनकर, अरे बाप रे, आई एम वेरी नॉलेजेबल पर्सन, And we come as, oh, I'm a very knowledgeable ओ मैं person. बहुत बढ़िया गाता हूँ, बजाता हूँ, I sing well, I play well. मेरे ऐसा कोई नहीं है। No one is there like me. मेरे भाई मेरी बहन है, My brothers, my sisters. प्रभु को मूर्ख चाहिए, बुद्धिमान नहीं चाहिए, ज्यादा अक्ल मत चलाइए। Oh, God chooses the foolish people, not the कोई wise. है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. और लिखा है And it is written. मनुष्य जंगली गधे के बच्चे के समान है। And a man is like the wild donkey's colt. जब बुलाए गए थे क्या थे? जंगली थे, न पढ़ना आता है न कुछ आता है, जंगली गधा। And when you were called, you were nothing. You did not know how to read or write. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. अब मेरी हैंडराइटिंग तो इतनी गंदी हुआ करती थी And my handwriting used to be so कि bad. आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। You cannot imagine. जब खुद मैं पढ़ नहीं पाता था क्या लिखा मैंने। I myself could not read what I have written. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my लेकिन sisters. कौन विश्वास करेगा जिसकी हैंडराइटिंग गंदी थी, आज उसी ने 40 से ज्यादा किताबें लिख दी हैं, The one who with a bad handwriting has written more than 40 और books कम से now. कम 10-20 किताबें ऐसी हैं जो अभी छपी नहीं है। And 20 books are almost there which are not been published as yet. मेरी हैंडराइटिंग गंदी थी, My handwriting was really bad. मुझे लिखना पसंद नहीं था, I didn't love writing. पढ़ना बहुत पसंद था, I loved reading और actually. एग्जाम्स में मैं लिखता नहीं था, मुझे मालूम होता था, फिर भी लिखता नहीं था मैं, In exam I used to not write much. और मैं बहुत बोर हो जाता था। And I used to get bored. लेकिन अब But now, एक दिन में मैं बहुत सारे आर्टिकल्स लिख देता हूँ। in one day I write lot of मैं articles. 30-40 पन्ने लिख देता हूँ। 30 to 40 pages together at once I write. कई बार एक किताब मैं 2 या 3 दिन में मैंने समाप्त कर दी है। Many times in 2 or 3 days I finished entire book. एक छोटी किताब तो मैं एक ही दिन में समाप्त कर चुका हूँ। I finished one entire book in just one day. मैं अपने सामने मेरा खुद का ही चैलेंज रखता हूँ। I challenge myself and keep myself as a benchmark. जब बुलाए गए थे तब तुम क्या थे? When you were called, what were प्रभु you? आपकी गुणवत्ता देखकर नहीं बुलाता है, He never
never looks at a qualification and he calls you. मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से समझिएगा, My brothers and sisters, understand अब मैं this. पाम संडे पर आ रहा हूँ। I'm coming to the Palm ये Sunday. गधा बेवकूफ होता है क्या? The donkeys are और fools. कई बार हम कहते हैं कि गधा बेवकूफ है क्या, And many times we say donkey are fools. और जिसको कुछ नहीं आता कहता गधा है क्या तू? And one who doesn't know anything, we say, oh, you are a donkey. लेकिन मैं आपसे बताऊं, But I will tell you this. तुम्हें जब बुलाया गया था तुम क्या थे क्या? Brethren, see your calling when you have been called. अय्यूब कहता है कि जरा सा तेज बोलिए, अय्यूब कहता है क्या Job says, कि मनुष्य क्या है क्या? what is man? छूचा है, निर्बुद्धि है, वही बातें बताई गई जो मैंने अभी बताई है। I just told you that he's empty-headed, he's unwise. छूचा है, निर्बुद्धि है, He's empty-headed, unwise. वरन वो जंगली गधे का बच्चा है। Or I will say he's a wild donkey's और colt. मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने मनुष्य को जंगली गधा का बच्चा बोला है। Oh, God has called man as the wild donkey's colt. और फिर यीशु मसीह ने पाम संडे पर आ रहा हूँ, यीशु मसीह ने खजूर की डालियां लाने के लिए नहीं कहा था, Jesus never said to bring the palm branches. ये कपड़े लाने के लिए नहीं कहा He never था। said to bring the clothes. आज कलिसियाएं यही सब चीजें करने में लगी हुई हैं Today the churches are busy doing all this और भारत में रिवाइवल नहीं आ रहा है। and there is no revival in खुदा India. के वचन से जल्दी और ये कोरोना की बातें आप फैला रहे हो, More than the word of God, you are spreading corona. कोरोना का वायरस जल्दी फैल रहा है। The coronavirus is spreading much काश faster. इतनी तेजी से हम खुदा के कलाम को पहुंचाते But हैं। as the faster we could spread the gospel of God. मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से सुनिएगा, My brothers and sisters, listen carefully. प्रभु ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा? What did Jesus Christ say? यीशु मसीह ने कहा है Jesus कि said मनुष्य जंगली गधा है। that man is the wild donkey's colt. अब यहाँ पर क्या हुआ यह बताने के पहले, What happened in this place before I tell you नए that? नियम पर जाने से पहले, Before I go to the New इसके Testament, पहले कि प्रभु ये भविष्यवाणी करे या दर्शन करे, दर्शन दे, and before God prophesies and give a new vision, दो सेवकों को यह कहे कि बगल वाले गांव में जाओ, गधी का बच्चा मिलेगा, उसको खोल कर लाओ। and he tells two disciples to go in nearby village and bring the colt of the donkey. सुनिए, आपके लिए भी भविष्यवाणी आई थी, Listen, even for you a prophecy came. आपके लिए गधे के लिए देखिए, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये बैल बकरी के लिए भविष्यवाणी नहीं आई This prophecy never came for a goat or an ox, जिसकी बलि चढ़ाई जाती थी। for which is to be sacrificed. भविष्यवाणी गधे के लिए आई थी। The prophecy came for a donkey. मेरा प्रभु अद्भुत है, महान है। My God is wonderful and mighty. आपको समझना होगा कि आप ईश्वर की योजना का एक हिस्सा हो। You need to understand you are the plan of आपको God. समझ में नहीं आ रहा, पीछे जो बैठे, आप प्रभु के योजना का हिस्सा हो। You are the part of God's plan. इसके पहले कि यीशु कहता, Before Jesus said, भविष्यवाणी आ चुकी थी। the prophecy had already come. गधे के लिए भविष्यवाणी आई थी। A prophecy for the donkey. कौन गधा है? Who's saying this? मनुष्य गधा है, Man is the donkey. उसके लिए भविष्यवाणी आई A थी। prophecy came for him. योजना का हिस्सा बना लिया था खुदा He ने। was a part of the plan. ये घटना घटने के पहले क्या है? Before this incident took place, जकरिया उसका 9वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत को हम देखेंगे। Zechariah 9th chapter and the 9th verse. जकरिया, पहली बात सुनिएगा, Listen to the first thing. आप योजना का हिस्सा हो, You are the part of the आप plan. भविष्यवाणी हो। You are the और prophecy. यह भविष्यवाणी कब पूरी होगी? आप बोल रहे कोरोना वाली भविष्यवाणी थी। And you said the prophets of Corona had come. यिर्मयाह का आप रेफरेंस बता रहे हो, We're giving the references from the book of यशायाह का Jeremiah. रेफरेंस बता रहे हो, We're giving the reference from और Isaiah. बोल रहे कि ये पूरी हुई थी। And you said this is अरे fulfilled. भैया, जो पूरी होनी चाहिए उसको पूरा करिए। What should be fulfilled? Do those things. जकरिया 9वां अध्याय और 9वीं आयत में क्या लिखा सुनो। What is written in Zechariah 9th chapter and 9 verse. हे सियोन, हे सियोन यरूशलेम, जहां पर यीशु आए। बहुत ही अरे मगन बाबा, हो। थोड़ा आपको सुनिए, जहां पर यरूशलेम आए, When Zion, the city of Zion, where Jerusalem, where Jesus came. ये घटना जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे The हैं, incident what we are reading in this place. उसका नाम सियोन। The name was और Zion. सुनिए, कहा गया जकरिया के पास ये भविष्यवाणी आई, सियोन, The prophecy came to Zechariah, Zion. हे सियोन, हे सियोन, बहुत ही मगन हो। बहुत ही मगन हो। जो अभी ये होने वाले थे बाद में, What is going to happen later on? सब मगन होने वाले थे, All we're going to rejoice. होशाना के नारे लगाने वाले थे, All we're going to say Hosanna. डालियां काट कर लाने वाले थे, They were going to bring the palm branches. मगन होकर कपड़े ही मारने बिछाने वाले थे। Rejoicing, they were going to lay down their clothes. ये
angels. प्रोफेसी आई, ये भविष्यवाणी आई है, सियोन बहुत ही मगन हो। The prophecy came, Zion, you're rejoicing. हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार अरे कर। बाप रे, जय जयकार कर। ये पहली भविष्यवाणी आई यहाँ पर बाद में की 21वें अध्याय में। These things happened after 21 chapter, but the prophecy came before itself. मरकुस 11 में बाद में हुआ, It happened in Mark chapter 11 later. लूका 19, यूहन्ना 12 में बाद में हुआ। In Luke 19 and John 12, it took place later on. लेकिन गधी के बच्चे और ये यरूशलेम नगरी और ये मनुष्य जय जयकार करेगा, ये भविष्यवाणी पहले हो गई। The prophecy came before itself that the Zion will be rejoicing. और सुनिए क्या लिखा है, And listen what is written further. क्योंकि तेरा राजा क्योंकि तेरा राजा मतलब यीशु मसीह तेरे पास आएगा। अरे बाप रे, यरूशलेम तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ ये है। सब तो ठीक है, लेकिन वो कैसे आएगा? वह दिन है वो दिन है, और वह गधे पर, वो गधे पर, वरन गधी के बच्चे अरे पर। मेरे भाई मेरी बहन, वरण गधी के बच्चे पर सवार होकर आएगा। कोई है जो अपने हाथ को उठाएगा, ताली को बजाएगा, अपने यीशु मसीह को धन्यवाद देगा। आप भविष्यवाणी का हिस्सा हो। Oh, brother, sister, you'll give glory to Jesus Christ because you are part of the prophecy. कहा कोरोना के चक्कर में गलत संदेश फैला रहे हो दुनिया को। In this coronavirus where you are spreading the wrong दुनिया message, को विषय मिल रहा है people are getting the subject to speak upon. कि खुदा ने कोरोना की भविष्यवाणी की थी। That God had prophesied about the corona. ये भविष्यवाणी का चक्कर छोड़िए, बाद में बताऊंगा मैं आपको। Leave about the other prophecies, I'll tell that some other time. लेकिन जो भविष्यवाणी आपके लिए हुई उसको समझिए। You understand the prophecy which is made for you. भविष्यवाणी यीशु के लिए हुई थी, The prophecy made for Jesus Christ, यीशु के जन्म के लिए हुई थी, for the birth of Jesus, अद्भुत मंत्री वगैरह सब भविष्यवाणी हुई थी, that he will be called the mighty, स्त्री का वंश जन्म लेगा वगैरह वगैरह सब हुआ थी। or the seed of the woman will be born. लेकिन कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हो But can you imagine? आप उसके भविष्यवाणी का एक हिस्सा हो? You are the part of his prophecy. भविष्यवाणी आपके लिए भी हुई थी, Even the prophecy was made for you. भविष्यवाणी आपके लिए भी हुई थी। Even the prophecy was made for you. मनुष्य जंगली गधा के बच्चे के समान है। Oh, man is like the wild donkey's और colt. भविष्यवाणी क्या हुई थी मालूम है? And what the prophecy कि was? मनुष्य गधा है। Man is a परमेश्वर donkey. ने निर्बलों को चुन लिया, बुद्धू लोगों को चुन लिया है। Oh, God has chosen the feeble, the foolish people of the और world. भविष्यवाणी ये हुई है The prophecy कि was एक दिन आएगा, one day will come. यरूशलेम जय जयकार करेगा, Jerusalem will sing victories. बहुत मगन होगा, And it will be और rejoicing. राजा आएगा, यीशु आएगा। And the king will come, Jesus Christ will come. किस पर सवार होकर? Riding on what? आप वो गधे हो You are that donkey जिस पर यीशु सवार होना चाहता है, on whom Jesus wants to ride. जिस भविष्यवाणी के द्वारा हिस्सा बनाया है। And he has made you the part of his plan, part of his Oh my prophecy. God, can you imagine? Can you just imagine? आप उसके योजना का हिस्सा हो। You are the part of his plan. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. अब हम इस कहानी को देखना शुरू करते हैं। Now let's try to see this story तीसरी now. बात मैं आपको बताना चाह रहा The हूँ। third thing which I want to tell you. अब यहाँ पर 21वां अध्याय जो हम देख रहे हैं, Now this 21st chapter what we यूहन्ना see. 12 खोल लीजिए, वहाँ पे हम जो देखेंगे Or John chapter 12 wherever we वहां can से हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। try to see from that place. और गधी के बारे में कहा था मैंने बताया, I told you that about donkey was कोई mentioned. खजूर के बारे में नहीं बताया है, Nothing about the palm was गधी के mentioned. बच्चे के बारे में बताया है। It's not about the colt of a और donkey. कहा कि बगल वाले गांव में जाओ Said go in the nearby village और वहां से गधी का बच्चा खोल कर लाओ, and lose the donkey's colt and bring. गधी का बच्चा खोल कर लाओ। Lose the colt of donkey and bring. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. आपका जिक्र चल रहा है, Oh, you're mentioned in this place. आपके बारे में बातचीत हो रही है। You're mentioned in this place. शायद मेरे पास्टर्स, मेरी टीम मुझे पसंद नहीं करेगी ये बताने के बाद, आगे जो बता रहा हूं मैं। Might be my pastors, my team will not like me after mentioning this thing. सुनिए क्या लिखा है। Listen what's written down there. बहुत से लोग पर्व में आए थे। हाँ। उन लोगों ने दूसरे दिन यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहे हैं। हाँ। उन्होंने खजूर की डालियां ली और यीशु से भेंट करने को निकले। हाँ। वे पुकारने लगे, हाँ। होशाना जो प्रभु के नाम से आता है, इज़राइल का राजा धन्य है। तब थोड़ा यीशु सा यूहन्ना को देखते देखते हम लोग 21वां अध्याय फिर से खोल लें, Again, we'll open Matthew chapter 21. क्योंकि मैंने बताया यूहन्ना ने डायरेक्टली गधा मिल गया बताया।
Because John rightly mentioned that he received the cold. डिटेल नहीं दी उसने, He didn't give the detail of it. लेकिन हम लोग यहाँ पर उसको देखेंगे 21st chapter, Matthew और 21 लिखा है, is written. जब वे यरूशलेम नगर के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के गांव में पास आए, तब यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही बंदी मिलेगी। एक गधी कैसे मिलेगी? नाउ पास्टर्स मेरे पास देखिए, Pastors, now look at me. लीडर्स जो मुझे सुन रहे हैं मेरे पास देखिए, Leaders who are listening to me, look at me. मैं देख रहा हूँ, मुझे आप देख नहीं रहे कुछ लोग, Some people are not looking at me. तो मेरे पास्टर्स लोग मैं निवेदन करूं मेरे पास देखिए। Pastors, I will request you to look at me. आपको मैं पसंद नहीं आऊंगा, Maybe you will not like me. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, That doesn't make any difference to me. जो है वो है। What is there, it is there. यीशु ने कहा, प्रभु ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, बस that's And all। Jesus Christ said, what I am, I am. कोई है जो कहेगा आमीन? तुम्हें गधी क्या लिखा है पास? सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही बंदी मिलेगी, उसके साथ उसका बच्चा भी तुम्हें मिलेगा। सुनिए, Listen, बंधा हुआ मिलेगा। you'll find it tied there. यदि आप प्रभु के योजना का हिस्सा हो, If you are the part of God's plan, तो प्रभु किसी पर भी नहीं बैठेगा, इस बात को समझिए। understand God will not sit on anyone. प्रभु ने कोई और गधा यहाँ से वहां पर भी गधे हैं, यहाँ भी गधे हैं का जिक्र नहीं किया। God never mentioned, oh, we have donkeys here, donkeys there, other donkeys. यीशु मसीह ने ऐसा गधा चाहा Jesus wanted that donkey, जो उसकी योजना के अंदर था, which was under his plan. भविष्यवाणी की गई उसके लिए, Prophecy was made for him, और जो बंधा हुआ था, and which was tied. बंधा हुआ था। Which was tied. कई लोगों को बंधा हुआ रहना अच्छा नहीं लगता। Some people don't like to be tied. ये मत करो, वो मत करो, जब हम लोग कहते हैं When I say don't do this, don't do that, ये करो, do this, ये मत करो, don't do that. जब हम ये कहते हैं, When we say मैं this, पास्टर्स को निवेदन करूं, ये व्हाट्सएप और ये सब वीडियो भेजने की मिनिस्ट्री आपकी नहीं है, and I request the pastor, this is sending up WhatsApp and video ministry is not yours. ये किसी और को करने दीजिए। Let someone else do that. ये फेसबुक वगैरह आपके लिए नहीं है। Facebook and all these things are not for you. असिस्टेंट रखिए आप, Keep assistant for that. आपके मेंबर्स को रखिए आप। Keep your members for that. आपका काम, आई एम ऑन व्हाट्सएप, पास्टर लोग लिखते कई बार, And people, the pastor says, oh, I'm on आई एम WhatsApp. अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। I'm available on WhatsApp. मेरे भाई मेरी बहन क्यों कर रहे सब? My brother, sister, what are you doing there? कई बार मैं ये Many times. मैं ये कहता हूँ, I come ये out. आपका काम नहीं है, It is not your word. ये किसी और को करने दीजिएगा। Let someone else do that. बहुत सारे बच्चे सब करते हैं, Many children do this. किसी को बंधा हुआ रहना अच्छा नहीं लगता। No one likes to be tied. भैया मुझे बांध के रख दिया है, Oh, they have tied ये me. करना है वो नहीं करना, ये भी कोई लाइफ है? Oh, don't do this, don't do that. This is life. पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से मेरे पास्टर मुझे कह रहे थे कुछ From last 2 weeks, my pastors are saying to कि me, पास्टर आपने हमको बांध कर रखा हुआ है, Pastor, you have tied us. हमको फ्रीडम चाहिए, We want freedom. हम कुछ भी करना चाहते We हैं। want to do anything. मेरे भाई मेरी बहन, My brother, my sister. सेवा प्रभु ने दी है, If God has given you the ministry, तरीका भी वही बताएगा। even He will show you the आप way. अपना तरीका मत बताइए मेरे को, You don't tell your मुझे ways. अपना तरीका मत बताइएगा। You don't tell your ways. कल मुझे अफसोस हो रहा है कि 4 बजे मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ किसी से, And I'm disappointed at 4 o'clock at night. I'm taking the जिसको report. रिपोर्ट देनी चाहिए थी हम क्यों मांगे, आप खुद देना चाहिए थी। The one who's giving the report, why I'm asking her at 4 लेकिन o'clock? She should give किसको it बंधा all. हुआ अच्छा नहीं लगता है। No one likes to be tied. बंदा, मुझे अच्छा लगा कि मीडिया टीम ने ये सारी चीजें बिल्कुल रेडी करके भेज दिया हमको। And happy the media team has done all this, prepared and given वो us this क्लिप thing. भेजना आसान नहीं था, मेरे को समझ में आ रहा है कितना मुश्किल था वो। And I know it's difficult to send that clip to you. हजारों क्लिप्स है हमारे पास, Thousands of clips are there with संदेश us. है हमारे पास, A lot of sermons are there. उसमें से वो निकाल कर देना बहुत मुश्किल था। And to give and remove from there and give, that was रातों difficult. रात किया है, At night they have done लेकिन this. कई बार प्रचार करने वाली टीम ऐसा काम नहीं कर पाती। But madam, the preachers don't do this. मैं पूछ रहा हूँ, I'm asking you. और फिर बंधा हुआ अच्छा नहीं लगता है। And no one like to be bounded. किसी को अच्छा लगता है कि बांध कर रखा जाए। No one like to be bounded. ओ वो एक भेड़ Oh, that sheep. चरवाई के पीछे नहीं चलना चाहती थी, Didn't want to walk behind the उसने कहा ये कोई shepherd. लाइफ है Is this life? क्या, चरवाई के पीछे चलते रहो, To walk behind the मुझे तो shepherd? यहाँ जाना है थोड़ा सा। I want to go a little bit here. और वो वहां चली गई, And she went over और there. क्या हुआ, नतीजा अटक गई वहां पे, And what was the result? She was फंस stuck. गई है। She was stuck भला over हो there. उस अच्छे चरवा का जिसने उसको खोजा, ढूंढा और फिर से शामिल कर लिया अपनी टीम में। And that shepherd was a good shepherd. Therefore, he went and searched and brought her back. गुमराह पुत्र, छोटा वाला पुत्र, The lost son, the younger son. मुझे बंधा हुआ नहीं चाहिए, I don't want to be bounded. पिताजी मुझे मेरा हिस्सा दीजिए। Father, give me my part.
part of the मैं property. बंधा हुआ नहीं रहना चाहता I don't हूँ, want to be bounded. लेकिन मेरे भाई मेरी बहन इस बात को आपको समझना पड़ेगा। But my brother, sister, you need to understand यदि this. खुदा की योजना का हिस्सा आप हो, If you are the part of God's यदि plan, आपके लिए भविष्यवाणी आई है, the prophecy has come for you. तो ये भी तय था कि वही गधी का बच्चा चाहिए, वही गधी चाहिए जो बंधी हुई है। And God wanted that donkey which was tied. जो लोग खुदा के वचन के साथ बंधे हुए हैं, Those people who are bonded and tied to the word जो of God, खुदा के पवित्र आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, who are tied and bonded with the Holy Spirit, जो खुदा की बुलाहट का साथ बंधे हुए हैं, who are tied to the calling of God. थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। Do not compromise their प्रभु bread. ऐसे ही जंगली गधे के बच्चे पर सवार होगा। God will ride upon this wild donkey who are like this. किसी भी गधे पर सवार नहीं होगा, He will not ride on any other गधी donkey. का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। He will find a colt tied in सुनिए his आगे waist. क्या लिखा है। It was written down there. और उसके साथ हाँ। उसका बच्चा भी तुम्हें मिलेगा। हाँ। उन्हें खोलकर हाँ। मेरे पास अब ले आओ। मैंने आपको सारे रेफरेंस दे दिए हैं, And I gave you all the reference. उसको अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। And put the reference according to your लेकिन faith. बाइबल जो कहती है The Bible says. और अलग अलग जगह पर पढ़िएगा, चारों रेफरेंस मैंने दिए And in हैं। different four gospels I've given different references. ऐसा गधा चाहिए जो बंधा हुआ है। And we want to call which is और tied. चौथा लिखा है, And fourth is written. ऐसा गधा क्या बच्चा चाहिए जिस पर कोई गधा होता तो कोई बैठा होता उस पर। And if I was a donkey, someone has sat on that. गधी का बच्चा उसमें कोई नहीं बैठा है, Colt of the donkey which no one has sat क्योंकि upon. वो बच्चा है। Because it is a colt. और जिस पर कोई नहीं बैठा हुआ And है, no one has sat upon it. और बाइबल भी कहती है कि जिस पर कोई नहीं बैठा हुआ है। And no one has sat upon the गधी donkey. का बच्चा का मतलब है The colt of the donkey कि means वो पवित्र है, that it is holy. उसको पाप मालूम नहीं, It doesn't know sin. वो अभिषिक्त है, It is anointed. वो उसको मस्सा मिला He has है got the anointing. और उसको गलत काम मालूम नहीं है। It doesn't know wrong thing. यीशु मसीह ने कहा Jesus Christ जब said, तक छोटे बच्चे के समान नहीं हो जाते unless you become like a small स्वर्ग child, के राज्य में नहीं जा सकते you हो। will not go in the kingdom of heaven. जिस पर कोई नहीं बैठा है, इसके लिए गधे का बच्चा था। No one sat on that colt because that's why God wanted the colt of a बच्चे donkey. को ये दुनियादारी नहीं मालूम है, The children don't know about the worldly ये things. सब क्या चल रहा है व्हाट्सएप वगैरह मेरे को नहीं मालूम। Don't know about all this WhatsApp and all the हम things. लगे दूसरों के मैसेज को खोल के पढ़ने में और नॉलेज ले रहे, दुनिया का नॉलेज लो रहे आप। I'm reading knowledge from the world. We are reading any other message. आपके लिए पूरा बाइबल का नॉलेज पड़ा हुआ है यहाँ पर, And the complete entire knowledge of the Bible is falling here. आप लगे हुए दुनिया का नॉलेज लेने में। And you are basically taking the knowledge of the world. मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ गधी का बच्चा, And I'm telling you the colt of the यदि donkey. आपके जीवन में कोई और जुड़ा हुआ है, If someone else is joined in your life, कोई और बैठा हुआ है आपके if someone ऊपर, is sitting on your life, तो फिर तो यीशु नहीं बैठने वाला। then Jesus will not sit on that. आप उसकी योजना का हिस्सा नहीं बन सकते हो। Then you cannot be a part of his प्रभु plan. को ऐसे गधे के बच्चे चाहिए God wants that colt of the जिस पर donkey. कोई नहीं बैठा है, पवित्र है वो। No one has sat on the donkey. It is पूरी holy. दुनिया बिठा रखी है आपने, क्या You have made all the world sit upon you. हर एक की मर्जी पूरी करने में लगे हो। You are busy fulfilling everyone's will and यीशु ने कहा desire. पिता मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी होने देगा। And Jesus Christ said, not my will, but your will be done. मित्रों आपसे कहना चाहता हूँ, Friends, I want to tell you हमने this. प्रभु की प्रार्थना कहा, प्रभु तेरा राज्य आए, कहाँ है उसका राज्य? And we said and prayed for the Lord, Lord, let thy kingdom आप तो come. दूसरे राज्य की बात सुनने में लगे हुए हो। You are busy in getting other kingdoms things. लिखा है कि चौथा ऐसा गधा होना चाहिए, ऐसे गधे का बच्चा होना चाहिए जिस पे कोई सवार नहीं हुआ है। And the fourth point is mentioned that a donkey is called which no one has sat upon. कोई भी इस पे बैठा नहीं है। No one has sat upon ज्यादा that लंबा मैं donkey. नहीं खींचूंगा, समाप्त करना चाहूंगा। And I want to finish वो it. अभिषिक्त है, And it's कोई है anointed. जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. और फिर तैयारी वापस लिखा है, And it's written in that place. सुनिए Listen. हालेलुया। Hallelujah. और लिखा यीशु मसीह ने कहा, And Jesus Christ said, हाँ बड़ी हाँ यदि तुमसे कोई कुछ कहे कुछ कहे तो तुम कहना तो कह देना प्रभु को इनकी आवश्यकता है। प्रभु को इनकी आवश्यकता है। लूका निकाल ले 19वां अध्याय। you can read from scripture of Luke, और मैं चाहूंगा कि लूका भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, साथ चारों जगह से हम पढ़ेंगे। Luke 19. अब बाद में पूरा मनन करिएगा उसका। And then we're going to meditate upon that completely. लिखा है जब यीशु हाँ। जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया गांव के पास पहुंचे, तब यीशु ने अपने 2 चेलों को भेजा और उनसे यह कहा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही 35 पहुंच जाइए, डायरेक्ट 35। 35 verse from there. वे उसको यीशु के पास लाए। अल्लाह है, उन्होंने अपने कपड़े उस गधे के बच्चे पर डाले उस गधे के बच्चे पर डाले। सुनिए, ध्यान से सुनिए। Listen carefully here.
और यीशु को उस पर सवार कराया। यीशु बैठेगा। Now Jesus will sit. आप जंगली थे, You were wild. आप बेवकूफ थे, You were आप foolish. निर्बुद्धि थे, You were unwise. छूछे थे। You were empty-headed. अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, Now I want to tell you this. क्या ऐसे ही रहोगे? Will you stay same like that? आपको तैयार होना पड़ेगा। You have to be prepared. गधे के बच्चे को तैयार किया गया है, The colt of the donkey was उस prepared. पे कपड़ा डाला गया है, The clothes was laid upon उन्होंने it. अपना कपड़ा डाला है, They laid their garments चेलों upon ने it. तैयारी की है, Disciples उस prepared गधे it. को तैयार किया They है prepared the ताकि उस colt. पर यीशु मसीह बैठेगा। So Jesus could be sitting on that. जब आप प्रभु के लिए आ रहे हो, When you're coming for Jesus जब प्रभु Christ, आपको बुला रहा है, when Jesus is calling मैंने you, पहले कह दिया पाम संडे का, I told you before itself Palm Sunday. ये बुलाहट का सप्ताह है It is a week of calling. और हर सेवक जो बुलाए गए हैं And every someone who has been called, उनकी शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। you should begin from here. लिखा यीशु उनके आगे आगे चले, Jesus walked ahead of them. मतलब यीशु उनके आगे आगे चल रहा है, That means Jesus walking ahead of them. हमको भी आगे आगे चलना है, When we have to walk ahead, हमको लोगों को आगे लेकर जाना है you have to pray, take the people ahead. और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। And for that you need to be prepared. आप जैसे हो वैसे नहीं आ सकते हो, The way you are, you cannot come in that आपको way. तैयारी तो करनी पड़ेगी। You have to do little preparation. भले ही गोलियात को मारने के लिए शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को दिए, Oh, might be to kill the Goliath, Saul gave his armaments to David. वो तैयारी कर रहा है उसकी, He's making him prepare. भले for वो that. उसको फिट नहीं आए, But it was not fitting वो him. कंफर्टेबल नहीं था, He was not comfortable with that. लेकिन दाऊद ने तैयारी तो की। But David made the preparation. उसने 5 पत्थर उठाए, He took the 5 stones. उसने अपना गुफन ठीक किया, He put his sling अपनी properly. अपनी बैग वहां पर जो उसकी जो थैली थी And whatever sling bag he उसमें पत्थर had, डालेगा, he put the stones in पूरी that. तैयारी के साथ गया है वो। He went with preparation. जब आप प्रभु के लिए बुलाए गए हो, If you have been called for God, प्रभु की योजना का हिस्सा हो, if you are the part of God's आपके लिए plan, भविष्यवाणी हुई है, a prophecy is made for you. आप अब तक बंधे थे, Till now you were tied. किसी का सुना नहीं आपने का, You never heard केवल anyone. प्रभु के लिए आप सुरक्षित थे, Only for God you were protected. आप अभिषिक्त थे, You were आप पर anointed. कोई बैठा नहीं था, No one sat upon you. तो अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी, Now you have to make the preparation. तभी प्रभु आपके ऊपर बैठेगा, Then only God will sit तभी upon प्रभु you. आप पर सवार होगा। And God will आज ride upon सेवकों को you. मैं उत्तेजन देना चाह रहा Today I want to encourage the servants हूँ, of तैयारी God. करिएगा। Do the preparation. मैं 9 बजे सोया सुबह, 9 o'clock morning I slept. क्योंकि मेरे लिए 12 की सर्विस थी, Because for me it was 12 o'clock service. हर शनिवार का मेरा यही सिलसिला होता है। And this is every Saturday I do in the मैं same way. 7 साढ़े 7 को सोता हूँ, I sleep at 7, 1 7:30. घंटे के लिए सोकर After sleeping for 1 hour, हमारे 9 साढ़े 9 की 10 की सर्विस जो होती है, 9:30 service, whatever we और have. मैं 11 में प्रचार करता हूँ। I preach in the 11 o'clock service. मित्रों में आपसे कहना चाह रहा हूँ, Friends, I want to tell you this. प्रिपरेशन तैयारी होनी चाहिए। Preparation should be there. कोई है जो कहेगा हालेलुया, Hallelujah. रोज मैं कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, Every day I'm speaking something. रोज मैं कैमरा पर हूँ, Every day I'm on the और cameras. आप मुझे कहिए जिंदगी भर आप कैमरा में रहिए, And your whole life will tell me be on the cameras. मेरे पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए मटेरियल तो होना चाहिए, I should have some material to speak. लेकिन मेरे पास है But I have that. क्योंकि मैंने तैयारी की है। Because I've done the preparation. पवित्र आत्मा है Holy Spirit is there. क्योंकि मैंने तैयारी की है। Because I've done the preparation. क्या आपने तैयारी की है? Have you done the preparation? किसी ने आपको तैयार करना चाहिए, Someone should prepare you. आपको उनके अंडर जाना चाहिए। You have to be under हमारे there. बाइबल कॉलेज में आइए Come to our Bible ताकि college. कोई आपको तैयार करे। So someone could prepare you. कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा और कहेगा जय मसीह Or के, say Jai कोई है जो Masih. कहेगा हालेलुया। Hallelujah. हमारे पास रेसिडेंशियल बाइबल कॉलेज है, We have Residential Bible बड़ा College. खूबसूरत सा कॉलेज है, We have Bible College. बहुत बड़ा नहीं, बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा नहीं है, We don't have very big but very beautiful Bible कम से कम College. 36-40 लोग रह सकते हैं उसमें, 35 people, 36 people can और stay हमारे here. पास 2 कोर्सेज चल रहे हैं, And 2 courses we are running here. एक 6 महीने का और एक 1 साल का डिप्लोमा इन थियोलॉजी। And one is 6-month course and one is 1-year course, diploma in theology. तैयारी करी जा रही है, We have to do the preparation कोई नहीं बैठा है, on whom no one has sat. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. उसको हम तैयार करते हैं। We prepare that. कई लोग छोड़ जाते हैं क्योंकि वो बंधा हुआ नहीं रहना चाहते Many हैं, people leave and quit because they don't want to be tied. उनको आजादी चाहिए। They want freedom. मेरे भाई मेरी बहन, बंधा हुआ होना जरूरी है। My brother, my sister, tied is चलिए important. मैं एंड करने जा रहा हूँ, I'm going to finish मैं now. खत्म करने जा रहा हूँ। I'm going to finish. प्रिपेयर होना चाहिए। You should be एक बार prepared. रिपीट करवाऊं मैं आपको, I'm repeating once again. आप भविष्यवाणी आपके लिए हुई थी, The prophecy was made for you. आप प्रभु की योजना का हिस्सा हो, You are the part of God's plan. बंधे हुए होना जरूरी है, You should be tied. आप पर कोई नहीं बैठा होना जरूरी No है, one should be sitting on आपको you. तैयारी के साथ आना जरूरी You have है। to come with the preparation. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. अब और क्या है, And what further? अब और क्या है? What further? चलिए मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। I'm going to finish in this place. मैंने बताया कि गधे के बच्चे के लिए भविष्यवाणी थी, I told you this is prophecy for the colt of the donkey. वो बच्चे के लिए भविष्यवाणी
Prophecy of the colt of a donkey was गधे there. के लिए भविष्यवाणी थी A prophecy about the और गधे donkey. का बच्चा इसलिए क्योंकि कोई सवार नहीं हुआ उस पे And why the colt of donkey? Because no one has sat upon हमें it. बच्चे के समान होना है You should be like a child. लेकिन अब सुनिए Now listen further. मैं यहाँ पे एंड करने जा रहा हूँ I'm going to finish in this यीशु place. मसीह सवार हुआ Jesus rode upon प्रभु that. यीशु मसीह सवार हुए गधे के बच्चे पर Jesus sat upon that donkey. व्यवस्था क्या कहती है What the law says. नियम क्या कहता है What the rule says. मैं आपकी जानकारी के बताना चाहता For information, I will tell you. हूँ व्यवस्था में क्या लिखा है It's written in the laws. मूसा की व्यवस्था में In the laws of Moses. क्या कुछ कमी थी Was something lacking? सबके लिए नियम थे For everyone, the laws was there. मेमना चाहिए Lamb should be there. वहां पे पूरा बलिदान की तैयारी थी The preparation for the offerings. लेकिन गधे यदि योजना में है And the donkey is in the plan. यदि जकरिया 9:9 में लिखा है In Zechariah 9:9 is given. कि गधी का बच्चा पर राजा बैठेगा On the colt of a donkey, the king will sit. तो फिर क्या गधे के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं है Then is not there any prophecy for the क्या colt? उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है Is not there any preparation क्या for it? उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है Is not there any laws for क्या it? सिनाई की पहाड़ी में कमी है Is there some lacking in the Mount of मेरे भाई Sinai? मेरे बहन My brothers, my पिलातुस sisters. उसने खुद कह दिया पैशन वीक में कि यीशु में कोई दोष नहीं है And Pilate himself said that there is no fault in Jesus Christ. यहाँ पर व्यवस्था में कोई दोष नहीं है In the law, there is no सुनिए mistake. गधे के लिए भी व्यवस्था है Even there is a law for the donkey. दो रेफरेंस है लेकिन दोनों सेम है Two references are, but two are same. निर्गमन 34:20 और 13:13 हम 13:13 pढ़ने जा रहे हैं We go to Exodus 13:13. निर्गमन 13:13 सब लोग अपना ध्यान मेरे तरफ रखिए कोई बाइबल नहीं पढ़ेगा केवल हम वचन पढ़ रहे हैं मेरे पास देखिए मैं एंड करने जा रहा हूँ Look at me and I'm going to finish this. Just pay attention towards me. 13:13 निर्गमन 13:13 Exodus is 13:13. मैंने दो रेफरेंस बताए हम निर्गमन 13:13 पढ़ रहे हैं मेरे पास देखिए यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ सुनिए बाइबल क्या कहती है गधी के हर एक पहलौठे के फिर से बदले पढ़िए पास्टर क्लियर पढ़िए गधी के गधी के हर एक पहलौठे के बदले पहलौटे के बदले मेमना देकर मेमना देकर सुनिए Listen. गधी के पहलौटे मतलब बच्चा The firstling of the donkey, that is colt. गधी का पहलौटा मतलब बच्चा The firstling of the colt or donkey. गधी के पहलौटे मतलब गधी के बच्चे के बदले में The firstling of donkey, that is the colt in the place of the colt. हम सब ने पाप किया है We all have sinned. और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है And the wages of sin is death. अब क्या लिखा सुनिए Listen further what is written. गधी के पहलौटे मतलब गधी के बच्चे ने पाप किया है And the colt has committed sin. हमको बुलाया गया है We are called. और हमको पवित्र होना पड़ेगा And we need to be holy. लेकिन कैसे होगा ये But how can that happen? कौन सी व्यवस्था होगी What laws are there? व्यवस्था है Law is मेरे there. पास देखिए Look at me. गधी के पहलौट मतलब गधी के बच्चे के बदले में गधी के हर एक बच्चे के बदले में गधी के हर एक बच्चे के बदले में मेमना देकर अरे बाप रे मेमना देकर उसको छुड़ा लेना गधी के बच्चे को छुड़ा लेना Redeem it by the lamb. कैन यू इमेजिन Can you just क्या आप imagine? सोच सकते हो Can you just imagine? गधी के बच्चे के बदले में On the firstling of the donkey. गधी के बच्चे की ही जरूरत है Oh, there's a need of the colt of the अब donkey. ये भी पापी है And that is a इसको sinner. छुटकारा कैसे मिलेगा How that can be और redeemed? इसको छुटकारे की व्यवस्था है And there's a law of redeeming और it. व्यवस्था ये है And the law कि is मेमना देकर गधी के बच्चे को छुड़ा देना by a lamb you can redeem the firstling of the donkey. कौन है ये मेमना Who is this lamb? यरूशलेम नगरी इंतजार कर रही थी The city of Jerusalem was waiting राजा के राजा यीशु मसीह का for the King of Kings, Jesus Christ. और ये मेमना यीशु मसीह यरूशलेम नगरी पर केवल इसलिए आ रहा है ताकि ये भविष्यवाणी जो आपके लिए की गई है गधी के बच्चे के बदले में मेमना देना पड़ेगा तो ही कोई जरूरत नहीं थी गधे पर बैठने की There was no need of sitting on that वो colt. घोड़े पर आ सकता था हाथी पर आ सकता था He could have come up on the horse or लेकिन elephant. वो योजना में फिट नहीं बैठ रहे थे But they were not fitting in the plan. लेकिन मैं आपसे बताऊं But I will tell you, गधी को चुना गया a donkey was और फिर chosen. गधी पर बैठना यह भविष्यवाणी की पूर्तता होने की जरूरत थी And the fulfillment of the law was needed to sit on the donkey. और मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा And I हूँ want to tell you और this. ये क्यों हो रही है Why there
क्यों यीशु गधे पर बैठा है? Why Jesus sat on क्यों the उसने colt? कहा कि बगल के गांव में जाओ And why did he go to the neighbor's और village? गधे का बच्चा बंधा हुआ है, उसको खोल कर लाओ? And he found a colt died in there, bring it to me. क्योंकि मनुष्य जंगली गधा है, Because man is a wild donkey गधे का colt. बच्चा है It is a wild colt. और गधे के बच्चे को ही छुड़ाने के लिए ये व्यवस्था थी And there was a law to redeem that कि colt. मेमना दो और गधे के बच्चे को छुड़ा लो। You can redeem the colt by offering the lamb. और यीशु मसीह वो मेमना बना। And Jesus Christ became that lamb. बाद में क्या हुआ? यीशु तो चला गया, Later on Jesus went. ये तो अब तक बंदी हुई थी क्या? Till now it was लेकिन tied. यीशु के बैठने के बाद अब ये छुड़ा ली गई है, उसको छुटकारा हो गया है क्या? And after Jesus sat on that colt, it was redeemed, it was delivered. अब ये गधी, अब यीशु उस पे से उतर गए हैं क्या? Now Jesus got down from the donkey. उसने अपना काम पूरा कर दिया है He क्या? has fulfilled his और वो उस work. क्रूस पर जाने वाला है। Now he's going to go on that cross. दुख भोग सप्ताह की शुरुआत हो रही है क्या? Oh, Passion Week is और starting फिर उसको गुड now. फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ाया गया। On the Good Friday he was crucified. क्यों? Why? ताकि जिस गद्दी पर वो बैठा हुआ था Because on the colt he was वो sitting. खुद मेमना बना है, He himself became the बलिदान lamb. का मेमना बना है, He became the lamb to be ताकि crucified. उसके बलिदान के द्वारा गधी का बच्चा यानी आप और मैं छुड़ाए जा सके, छुटकारा पा सके, उद्धार पा सके। कोई है जो खुदा को धन्यवाद देगा, ताली बजाएगा, अपनी मुट्ठी को बंद करेगा? कोई है जो कहेगा यस, आप योजना हो, You are the योजना plan. का हिस्सा हो। You are the part of the plan. और इसीलिए गधी के बच्चे पर सवार हुआ है। And therefore he rode upon the colt of a तो donkey. मैंने पहले ही बताया था, I told you before itself. आज हैप्पी डोंकी डे होना चाहिए। Today should be Happy Donkey Day. आज गधे का इतवार मुबारक होना चाहिए। We should say Happy Donkey Day. आज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, Today I want to request जो भी you मुझे लाइव स्ट्रीम पर देख रहे हैं for watching me on the live या streaming बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, or watching the recorded message. जब भी सुनो, कभी भी, चाहे वो कौन सा भी महीना हो, Whenever you hear this again, किसी को मैसेज करिए और Send a- बोलिए हैप्पी डोंकी डे, गधे का रविवार मुबारक हो, पाम संडे नहीं है। and tell someone that not Happy Palm Sunday, but say Happy Donkey's Day. क्या आपने अपनी बुलाहट को समझा है? Have you understood your calling? मैंने बताया खजूर इतवार ये बुलाहट का इतवार है। I told you the Palm Sunday is a day of the calling. आज से मसीहों की नई शुरुआत होनी चाहिए। From today onwards, the believer should start newly. मनुष्य जंगली गधे के बच्चे समान है, Man is like the wild donkey's colt. प्रभु उस पर सवार होना चाहता And है God wants to ride upon ताकि that, आप छुड़ाए जा सको that you could be और delivered. बाद में जाकर लोगों को सुसमाचार सुना सको कि यीशु ही वो है जिसने मुझे छुड़ाया और वो तुम्हें भी छुड़ाना चाहता है। कोई है जो अपने हाथों को उठाकर, ताली को बजाकर, सीटी को बजाकर, कोई है जो अपनी मुट्ठी को, जो भी कर सकते करिए खुदा के लिए। कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा और कहेगा यस। कोई है जो मुस्कुरा के कहेगा हैप्पी डोंकी डे या गधे का इतवार मुबारक हो। हाँ? Happy donkey. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, I want to tell you this. ये दुनिया के तमाम क्रिश्चियन लोग चक्कर में पड़े, ये क्या बोल रहे हैं लोग? And all the Christians in the world are saying, oh, what is this? उनको लिंक शेयर करिए, उनको बोलना है ये हम बोल रहे हैं। And share the link along with them and say, oh, this is what we are और saying. जो भी मैंने कहा है वचन के आधार पर कहा है, Whatever I said is based on the word of God. मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया है। I didn't do any पिछले preparation. बार जहां मैंने छोड़ा था अय्यूब की किताब पर, And last time when I left you on the book of Job, वहीं से शुरुआत मैंने की है। started from there again. कोई है जो कहेगा हालेलुया। I say hallelujah. मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बड़े खुश दिख रहे हैं मुझे, And I see many people are looking happy, खास करके मेरी कलीसिया के लोग। especially my church उनको people. लग रहा है कि आज का मेरा दिन बन गया है। They think, oh, my day is done today. उनको लग रहा है कि वाह, आज हम लोग घरों में बैठे हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ा, वचन वही क्वालिटी का आ रहा है And they're saying, oh, we're sitting in the house, but we got the same quality message and we are और happy. उनके चेहरे में मुस्कान दिख रही है। I can see the smile upon your face. मैसेजेस भेजेंगे मुझे अभी You send messages to me, और I know. बिल्कुल भेजिएगा, And surely send. खुदा की महिमा होनी चाहिए। So God should be कोई है glorified. जो कहेगा हालेलुया। I say hallelujah. एक छोटी दुआ मैं करता हूँ I'm going to have small हर एक के prayer लिए, for each and every एक नई person शुरुआत होने के लिए। for a new beginning. आए पूना को यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होने का मौका देगा। Oh, we'll get a chance for Pune to be washed by the blood of Jesus. आए अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्य में सुनने वाले लोगों, आपके राज्य के लिए, शहर के लिए दुआ करिएगा। And all people hearing me from different states, from different cities, that in the coming days a revival will come in your cities. मुझे खुशी है कि इस साल जम्मू कश्मीर के लिए योजना बनी है। And this year we have a plan for Jammu and Kashmir. इस साल
उड़ीसा के लिए योजना बनी है। This year we have a plan for बिल्कुल Odisha. प्रभु का काम दोनों राज्यों में होने वाला है। And surely in both the states, God's work is going to take place. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. आइए हम दुआ करेंगे। Let's pray. प्यारे यीशु तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, Let us Jesus, we thank your name तेरे खूबसूरत से कलाम के लिए for a beautiful और word. हर सुनने वालों को योजना का हिस्सा बनाने के लिए And for everyone who's listening to your word, you make them part of your plan, Lord. तेरे शुक्रगुजार हैं हम लोग, We are thankful to you. तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। We thank your name. प्रभु तेरा राज्य है Let a kingdom और come. आने वाले दिन हमारी एक नई शुरुआत होने देगा। Let the coming days will be a new beginning for ये us. दुख सप्ताह शैतान के लिए खतरनाक हफ्ता होने वाला है। Let this pastor week be a week of the terrible for the Satan. इस संदेश को सुनने के बाद After hearing this sermon, कई गधी के बच्चे खुलने के लिए तैयार हो जाएंगे। many colt of the donkey will be ready to be untied. कई गधी के बच्चे और छूटने के लिए तैयार हो जाएंगे, Many of the colt of donkey will be ready to be loosened. ताकि दुनिया को यीशु का सुसमाचार सुना सकेगा। So they could go and preach the gospel of Jesus Christ to the हर world. सेवक को और पास्टर को आज एक नई शुरुआत करने के लिए एक मौका देगा। Give every pastor and leaders a new chance to start newly. जो सेवक मायूस हो गया है उसको एक नई उम्मीद देना। The servant of God who is disappointed, give him a new beginning. यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे आमीन। Amen.